Hello, dear students. Myself, Miss Prachi, welcoming all of you in your this new academic year by this one quote. And the quote says, "Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending." Yes, dear students, this is the new beginning, and we are going to make a great end of this. You are in your Science 1 class, and this year you're going to learn a lot of new concepts. Some are very, very interesting, some are related to your day to day life. Just one aim in your life is very, very important, that is, you're going to study and you will acquire the best from the content, textbook content. Out of the textbook content, you will gain very, very conceptual knowledge, and in every situation you're going to give your best. Okay, so that's it, students. This 1 week we are going to revise your standard 9th content, okay, which is very important for your standard 10th. Okay, there are some concepts which are from your 9th standard, okay, and that we are going to we will going to help, that will help you in your 10th standard. So for that, your basic concepts are very important, related to your science subject, and as all the other subjects also. Okay, so let's start to our today's revision from the standard 9th. That is, some important topics we are going to see over here. Okay, students, so before moving, let me tell you one thing, that I hope your 9th standard textbooks are there with you, because it will help you a lot for your 10th standard. Okay, if you're not understanding anything like that, and if you read that concept, as we are going to see all the contents whatever is there in your 10th standard from the 9th standard in this week. Okay, we are going to finish that. But as you're having your textbook of 9th standard, students, don't give it to anyone. Okay, it will help you for your 10th standard. Yes, so that's it. And if you don't have, don't worry, I will also upload it, some kind of pictures and all. And the best is you will download it from your phone. Okay, so that will be the best for you. Okay, आप अगर फ़ोन से भी डाउनलोड करेंगे तो भी आपको पूरा टेक्स्ट बुक आपके फ़ोन में ही मिलेगा. और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और एल्स यू कैन रीड फ्रॉम दैट डाउनलोडेड टेक्स्ट बुक. ठीक है. Okay, so yes, let's start to our today's topics. Today we are going to see 3 chapters, that is chapter number 1. Now we are going to see, okay, laws of motion. Yes, this chapter already you have learned in your 9th standard. Yes, but it is very, very important for your 10th standard chapter 1. आपका जो 10th standard का chapter 1 है, उसके लिए 9th standard का ये chapter बहुत important है. Okay, so I am taking all the things whatever are there for the 10th standard from 9th standard. So you have to pay attention till the end of the tutorial video. Okay, if your textbook is there, please be with your textbook. ठीक है. Yes, now moving ahead. First topic is distance and displacement. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? ये हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. हम ये जो वर्ड है वो भी बोलते हैं, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली दैट व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्टेंस हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मतलब क्या होता है, मतलब क्या? सो दैट वी विल सी ओवर हियर. एक्चुअली यू हैव लर्न दिस. This is a quick revision. Okay, students? Yes, so be ready. So here, distance is the length of actual path traveled by an object in motion while going from one point to the another. For example,
अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट इज़ देयर दैट इज़ कार। ओके, अब ये कार को ये पॉइंट से P से Q तक जाने का है। ठीक है, तो ये यहाँ से जाके यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। यस, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर पाथ जो है वो ट्रैवल करेगी। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? ओके, सो ये जो पाथ है, ये जो रोड है, जो ये कार ने क्या किया, ट्रैवल किया। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, फ्रॉम P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक ये कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कितना लेंथ उसने ट्रैवल किया। ठीक है, yes, that is called as distance. Take another example. If one object is there, a object is there over here and it is going from this circular path. Okay, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से जाके वापस यहाँ तक आएगा, तो उसने कितना एक्चुअल पाथ जो है वो ट्रैवल किया। ओके, जब वो मोशन में था, जब वो ट्रैवल कर रहा था। ओके, सो दैट एक्चुअल पाथ इज़ called as distance. ठीक है, whereas displacement is the minimum distance between the starting point to the finishing point. displacement मतलब क्या होता है, मिनिमम कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ओके, अगर ये कार जो है वो यहाँ से जाके यहाँ तक रुकती है, ओके, तो उसने इतना ही मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से जाके यहाँ से गया और यहाँ वो स्टॉप हो गया, मतलब उसने इतना ही मिनिमम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इजी, बहुत इजी है, एकदम ध्यान से सुनना, यू विल डेफिनेटली गेट इट। नाउ द सेकेंड वन इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड तो हम सबको पता है, स्पीड मतलब क्या होता है, दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, सो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड। ओके, मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो कितना स्पीड है, ये देखो हियर, एंड वन ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, इट इज़ कंप्लीटिंग वन पाथ। ओके, ये ऑब्जेक्ट ने ये इतना पाथ जो है, इतना रोड जो है वो क्या किया, कंप्लीट किया। वो कितने टाइम में उसने ये कंप्लीट किया, उसका स्पीड क्या था, सो इट इज़ डिपेंड अपॉन दैट। ठीक है, कितना स्पीड है एंड कितने टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो स्पीड इज़ इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, नाउ वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होती है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये जो उसका यूनिट रहता है SI सिस्टम एंड CGS सिस्टम में, वो आपको पता होगा कि SI यूनिट में जो है वो स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट जो है दैट इज़ सेम, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, एंड CGS सिस्टम में उसका है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ व्हाट स्टूडेंट्स, समटाइम्स वी यूज टू गो टू पार्क। ओके, हमें पार्क में जाना बहुत पसंद है, बट नाउ ड्यू टू दिस सिचुएशन, कोविड सिचुएशन, वी आर नॉट एबल टू मूव एनीवेयर। ठीक है, बट बचपन में हम कभी तो गए हैं, यस, पिकनिक, स्कूल पिकनिक जब जाती थी तभी भी, यस। So you must have all played on a ride in a slide in a park. Okay, तो आपने यहाँ पे खेला है। You know that while sliding down, जब हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तब velocity जो है लेस होती है, कहाँ पे, नीचे। ओके, एट द टॉप velocity जो है वो इंक्रीज़ होती है, एंड मिडल में जो है velocity जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, मिडल में यहाँ पे हम बहुत फोर्स में रहते हैं, सो दैट वी विल मूव टूवर्ड्स दिस पॉइंट। ओके, हम अगर एंड तक आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, हमारी वेलोसिटी भी ज़्यादा रहती है, यहाँ पे बीच में ज़ीरो हो जाती है और यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है, लेस हो जाती है।
ठीक है. सो एक्सेलरेशन इज़ व्हाट? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो ये जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. ओके, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. हमेशा ध्यान में रखना है एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है? स्मॉल ए. चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू. यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? v जो है हियर यू कैन सी v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब यहाँ की वेलोसिटी, एंड u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, एंड टाइम को कैसे डिनोट करेंगे? t से. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. यस, नाउ वी आर गोइंग टू सी न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन. न्यूटन ने बहुत सारे कितने इक्वेशंस दिए हैं स्टूडेंट्स? यस, यू नो कितने सारे इक्वेशंस दिए हैं न्यूटन ने? 3 equations. Newton has given 3 equations of motion and we are going to see one by one. First equation is V is equal to U plus AT. If you are having your textbook, students, please come to your textbook page number 8 where you will see one diagram. यहाँ पे एक डायग्राम दिया है एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया है. ओके, यहाँ से हम ये इक्वेशन को फाइंड करते हैं. तो वो कैसे फाइंड किया है वो ऑब्वियसली आपको पढ़ाया है और आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे. दैन ऑल्सो यू विल एबल टू गेट इट. हियर आई हैव जस्ट रिटन द इक्वेशंस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर 10th स्टैंडर्ड. ओके, तो ये इक्वेशन जो है वो ध्यान में रखने हैं. v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी. जैसे कि हमने देखा v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. t, व्हाट इज़ t? t इज़ व्हाट? t is time. Okay, t is time. Yes, so that is the first equation of motion. किसका? न्यूटन का. ठीक है. Okay, now the second one is s is equal to ut plus half at square. यहाँ पे s जो है वो डिस्टेंस है, a क्या है? एक्सेलरेशन. ओके, u आपको पता है. Yes, you know that. And t is what? Time. That is also you know. You just have to remember this equation, students. Sometimes it will come for fill in the blanks. Sometimes it will come for match the following. So if you are aware about this, you will able to get the marks and you will able to make the correct matches. Okay. Now the third one is Newton's third equation of motion. V square is equal to u square plus 2as. Okay, तो ये जो terms है यहाँ पे ये कैसे दिए हैं वो आपको पता है. v क्या है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. यस, u इज़ व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी. यस, a इज़ एक्सेलरेशन एंड s इज़ व्हाट? डिस्टेंस. ओके, सो दिस 3 इक्वेशंस यू हैव टू रिमेंबर. वेरी इजी. अभी जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ईजी भी है, बहुत ज़्यादा ईजी है. तो इसका जो डेफिनेशन है दैट वी विल सी ओवर हियर, दैट इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ द मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन. एक ऑब्जेक्ट है वो कौन से रोड में ट्रैवल कर रहा है? सर्कुलर पाथ. इट इज़ हैविंग इट्स सर्कुलर पाथ. ओके, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो सिर्फ एक सर्कल के अलोंग ही ट्रैवल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. ओके, सर्कल मतलब सर्कुलर, ऐसे ध्यान में रखना है सो दैट यू विल एबल टू रिमेंबर इट. ठीक है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार जो है वो मूव हो रही है अलोंग द सर्कुलर पाथ. सो स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफरेंस डिवाइड बाय टाइम. सर्कमफरेंस, सर्कल का सर्कमफरेंस कितना है? 2πr अपॉन t. Okay, yes, so this object is following only a circular path, so that is called as uniform circular motion. Now very important, Newton's laws of motion. Okay, पहले सबको रिमेंबर करना है कि न्यूटन्स के कितने लॉज ऑफ मोशंस है. आई एम गिविंग यू 1 second, you have to remember how many laws Newton has given. 1 2 3 4. Yes, you all are right. Newton has given his 3 laws of motion
एंड ये जो है ये आपको कभी भूलना नहीं है। अगर आप कुछ CET भी दोगे, कुछ आप हायर स्टडी में भी जाओगे, तभी भी कहीं ना कहीं आपको ये जो 3 लॉ है उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, सो आपको कभी भी ये नहीं भूलना है। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? So here you can see, students, an object continues to remain at a rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force has been act upon it. Okay? कभी हम ऑब्जेक्ट को कब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, टग ऑफ वॉर। हमने सबने देखा है, किसी ने हमने क्या खेला भी है ये बचपन में या अभी भी, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस गेम, वेरी इंटरेस्टिंग गेम। यू कैन सी इट्स वीडियोज़ ऑल्सो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। यस, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड से क्या अप्लाई करते हैं, हम जो है ये जो है उसको खींचते हैं अपनी तरफ, तब हम उस पर कुछ फोर्स जो है वो लगाते हैं। ओके, सब मिलके कुछ फोर्स लगाएंगे तभी तो वो वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगी एंड वी विल एबल टू, हम दूसरी जो पार्टी है, दूसरी टीम जो है उसको हम लूज़ कर सके। सो मतलब हमने क्या किया, हमने उस पर फोर्स लगाया। ओके, फोर्स लगाने के बाद वो जो है वो एक साइड से दूसरे साइड तक, मतलब हमारी तरफ हमने उसको खींचा। सो फॉर दैट हमने उस पर क्या लगाया, फोर्स। तो वही यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। अगर हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट में ही रहेगा। येस, ऑब्वियसली। सो फॉर दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, फोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मोमेंटम के ऊपर रिलेटेड है। दैट इज़ the rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of speed. तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दिया है, दैट इज़ आपको आपके फ्रेंड्स को बोलना है कि स्लो स्पीड में बॉल जो है वो थ्रो करना। ठीक है, ओके। तो उसने आपके तरफ स्लो स्पीड में बॉल को थ्रो किया। ओके, आफ्टर दैट बाद में आपको उसको बोलना है कि कुछ हाई स्पीड लगाओ और फिर बॉल थ्रो करो। तो आपको बहुत सारे डिफरेंस उसमें दिखाई देंगे। ओके, जिसने स्लो स्पीड में आपकी तरफ बॉल को थ्रो किया था वो बॉल भी आपकी तरफ स्लो ही स्पीड में आएगा। ओके, बट जिसने बहुत फोर्स लगा के हाई स्पीड से बॉल आपकी तरफ थ्रो किया वो बॉल भी आपकी तरफ हाई स्पीड में ही आएगा। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स, जितना हम फोर्स जो है वो अप्लाइड करते हैं वो उस पर डिपेंड होता है कि ऑब्जेक्ट हमारे तरफ कैसे आ रहा है, स्लो स्पीड में आ रहा है कि फास्ट में आ रहा है। ठीक है, ओके। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. Okay, यहाँ पे आप अगर देखोगे the force applied by first object, यहाँ पे हम किसी के ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज विच फोर्स, एक्शन फोर्स, बिकॉज हम उस पर कुछ एक्शन कर रहे हैं, हम उस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। येस, while the force applied by the second object on first object is called as reaction force. तो हमने पहले उसके ऊपर फोर्स लगाया, ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्शन फोर्स। बट बाद में वो जो है ऑब्जेक्ट वो भी हमारे ऊपर कुछ रिएक्शन देगा कि नहीं? येस, ऑब्वियसली हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया है तो वो भी थोड़ा मूव हो जाएगा, ओके, बेंड हो जाएगा एंड समथिंग लाइक दैट। So that is called as what? Reaction force.
हमने उस पर एक्शन किया, उसने हम पे रिएक्शन दिया, लाइक दैट. ठीक है. सो दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So that is about your first chapter. This everything is there for your some concept are there for your 10th standard, so it is very important. Now we are going to see a very interesting and very easy chapter, substances in common use. Okay, हम जो common use में common life में daily life में हम जो substance use करते हैं उसको modify करके दिया है. That is some important salts in our daily life. Okay, सोडियम क्लोराइड ये जो है उसका केमिकल नेम है. टेबल सॉल्ट उसको हम कॉमनली बोलते हैं. एंड NaCl क्या है उसका केमिकल फॉर्मूला. ओके, NaCl सोडियम क्लोराइड. Na मतलब क्या, सोडियम. क्लोराइड मतलब Cl. ओके, आई होप स्टूडेंट्स all of you are aware about the symbols of different chemical substances. ठीक है, तो ये जो है ये हम डेली यूज़ करते हैं. ओके, खाने में. ओके, इट इज़ अ नेचुरल सॉल्ट, इट इज़ सॉल्टी इन टेस्ट, इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस वी हैव ऑलरेडी सीन. तो ये कलरलेस है, वाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है. यस. सेकेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं. एंड उसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3. बेकिंग सोडा ऑब्वियसली किस में यूज़ करते हैं, टू मेक ब्रेड, केक, ढोकला. ठीक है. यस. एंड और भी बहुत सारे उसके यूजेस हैं. ये यूज़ करते हैं ओवन को क्लीन करने में भी. ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस. थर्ड वन इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज़ CaOCl2. ओके, दिस इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर. इट इज़ वेरी यूज़फुल टू क्लीन द वेल वाटर. ओके, बहुत यूज़फुल है ये. अगर वाटर वेल में कुछ काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ माइक्रोब्स कुछ रहेंगे तो वो क्लीन करने में उसको जो है वो उसको हार्म करके वो पूरा उसको क्लीन करते हैं. किसको, वेल को. तो हम अगर हमारी वेल जो है वो कुछ ख़राब हो रही है, हमें कुछ ख़राब दिख रहा है उसमें, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं सो दैट द वाटर विल गेट क्लीन. ओके, आफ्टर दैट वॉशिंग सोडा Na2CO3.H2O. Na2CO3.H2O दैट इज़ वॉशिंग सोडा. ये भी बहुत यूज़फुल है, वाइट कलर का है. ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. यस. एंड द लास्ट वन दैट इज़ क्रिस्टलाइन सॉल्ट. ऑलरेडी वी आर अवेयर अबाउट दिस, दैट इज़ सोप. ओके, सोप. क्रिस्टलाइन मतलब क्या, सॉलिड रहता है, हार्ड रहता है. यस, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस. और यहाँ पे कौन सा सॉल्ट है, दैट इज़ सोप. ठीक है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रेडिएशंस. ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस. टाइप्स ऑफ रेडिएशंस कौन से हैं, अल्फ़ा रेस. सिंबल ध्यान में रखना है, डोंट फॉरगेट द सिंबल. अल्फ़ा रेस, बीटा रेस एंड गैमा रेस. ओके, already we have seen characteristics of these three rays. Okay, yes, you just have to remember its symbols. ठीक है. Okay, now the next chapter that is study of sound. ये बहुत easy chapter है and it is very very useful also. So the study of sound, हमें पता है हम किसी sound को कैसे सुनते हैं, through the vibration, through the waves. Okay, yes. So sound is a what? Sound is a form of energy which creates sensation of hearing in our eyes. In our, okay. Sound is what? It is in our ears. Okay. यहाँ पे eyes are written. So sound is a form of energy which creates sensation of hearing in our ears. ठीक है. Okay, so this energy is in the form of what? This energy is a form of waves. Okay, and the wavelength of sound is indicated by lambda. Lambda जो है वो ध्यान में रखना है. wavelength of sound कैसे indicated होते हैं, lambda. ठीक है. its frequency जो है वो indicate कैसे करती हैं, nu. ये symbol है उसका, वो भी ध्यान में रखना है. amplitude is indicated by A. Okay, and velocity of sound is equal to how much? Wavelength into frequency.
बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेवलेंथ को कैसे डिनोट करेंगे, लैम्बडा से, एंड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, सो दैट इज़ टी। ठीक है, ओके, टी से हम उसको डिनोट करते हैं। नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके 10th स्टैंडर्ड में उसका एक पूरा चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 131 पे आपको एक डायग्राम दिया है। फ्रॉम दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, ये दिस इज़ द कार्डबोर्ड ट्यूब, ये क्लॉक लगा है, एंड दिस इज़ द वॉल। ओके, फ्रॉम दिस यू विल एबल टू हियर द टिकिंग ऑफ क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ से वेव्स जाके कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स मेक इक्वल एंगल्स विथ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे देखो, ये जो है इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, और ये जो है वो परपेंडिकुलर है। हियर यू कैन सी दिस स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एंगल्स। ठीक है, θ1 θ2, दिस आर द एंगल्स, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर विच हैज़ बीन ड्रॉन। ओके, सो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जस्ट आपको यहाँ पे एक डिनोट करना था कि साउंड जो है वो ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ तक आता है। दैट्स इट फॉर दिस। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। I hope you understood this concept. It is very easy. Already you have learned. Use this in your daily life. And as I have already told you that don't give your 9th standard books to anyone. For now, you obviously need it for your 10th standard. Okay, if you have your book, downloaded book in your mobile phone, then also it is okay. Okay, students. So that's it for today. Thank you. Have a nice day. Study hard. Thank you.